two parts. In first, we have to calculate the concentration profile and molar flux isothermally, and in other case, we have to do this whole thing non-isothermally. And the first part will be done by me. Now, the main topic of this example is diffusion through a non-isothermal spherical film. This is the main topic, but I am going to discuss with you people about the isothermal part first. Now, suppose there is a hypothetical spherical stagnant gas film surrounding a droplet of a liquid, and you have to consider a figure which I am going to show you now. Now, I hope you people can see the figure. Now, if you see this, this is the outer boundary is of gas film, and the inner is of liquid film. Now there are two radii of this. The inner boundary has a radii of R1 and the outer one has of R2. Now there are two temperatures T1 and T2 minus T1. If you when you will talk about non-isothermal behavior, now at that time we will take these two temperatures which are these given. But when we will talk about isothermal behavior, there will be the same temperature. You know that isothermal mean the same temperature. So in this way, this portion will be discussed with Said Khan. And now, what are the applications of this? If you talk about drying of droplets through diffusion of gas, this is the main application when we talk about drying of droplets. Or if you talk about industry, if we talk about industry, there are if there are fertilizers, you know there are pellets of fertilizers which are in liquid form. Firstly, they are in liquid form. At that time, the environmental effect, atmospheric effect on the fertilizers can be taken as the application of this case. Now, the first case one, where from here the part A starts. We know that the total molar flux is mass flux is equal to the sum of the mass molecular flux and the mass convection flux. So we know that NBR is equal to 0. And how NBR is equal to 0? NBR is equal to 0 as the gas film is stagnant. There is no diffusion in the gas film to liquid film. There is a diffusion of liquid film into gas, but not from gas film to liquid. So now this is a bit, we have learned this earlier. We know that when NBR will be equal to 0, we will take NAR outside. The NAR will be common, and this expression will be formed. Okay, in the next step, we have done this we have done this shell balance earlier too. If we talk about the heat production to the viscous layers, in that we have learned about the mass balance on the spherical film. This is almost same. This is almost same. We will multiply the surface area of the spherical of the sphere with the mass flux. Now we will divide it by the 4 pi delta r, and after dividing we will take the limit at which the delta r approaches to 0. We will get this equation as I have shown. Now we will put the value of NAR over here, and we will get this equation. This is known as equation 3. I have given the name to it as equation 3. Now we know that at a constant temperature, concentration and the diffusion of A into B can be taken as constant. How concentration can be taken as constant? Because if you know there is an ideal gas equation, PV is equal to nRT. When we talk about N over V is equal to C, so at that time, at a constant temperature, the concentration can also be taken as constant, and whereas DAB is taken as constant too. So the product of this is constant. So when we take the CDAB outside, it can go on the other side and divide it. We can and 0 can be divided by it, and we will get this equation. We will get this equation after integration. When we will integrate it again, we will get this equation as I have shown.
the next thing, and this is the main equation. Now we will apply two boundary conditions on it. At first, the R is equal to R1, which is of R1 is of the liquid layer, liquid size sphere, and XA is equal to XA1. And when we apply the boundary condition on this, we will get this. And on the second one, when we apply this boundary condition, we will get this. Now, what's the next step? The next step is we will subtract both these equation. We will subtract both these equation and we will get this. We will apply the laws of natural log. We know that when we subtract the two expressions, this can be converted into division form. Similarly, we will get this equation, and C1, this can be taken over here. We can divide it by this. We will get C1. Now, if you talk about C2 now, we will use this equation and we will put this over here. We will put this over here and we will get C2. When we will get C2, now we know this equation, which is the first one. We after integration we get this equation. Now we will put both the values of C1 and C2 in this, and when we put both the values in this, we will get this equation, where total equation is this. Now total equation is this, and now on this on the same way which I have told you, that we will apply natural log, this will go over there, and by applying the laws of natural log, it will be converted into this, and then after this uh, after this this equation will be formed. Now we know that when a natural log comes and this is over, if this is over here, before the natural log, it can be taken to the power of, it can be taken as an exponent of the first equation. So first expression, sorry, we will get this equation and we will give it name as equation 5. Now we know this. We know this, as I have told you earlier. This is we know this equation. This expression. When we talk about behavior of dxa over dr, we have to differentiate with it with respect to dr. When we differentiate with respect to dr, we know that the natural log differentiation of the natural log is 1 over this whole term. When 1 over this whole term will come to the denominator will come over upper side, and the numerator will come over the denominator, and we will get this, and minus d, as xa we were talking about xa, so we will get minus dxa over dr. Now in the other side, this side, we know that there is only one variable term, which is r. R is changing with r is changing only. So the all these terms will come is same, and this will be converted, as we know that differentiation of 1 over r is 1 over r is 1 over r square. So we get this equation. We get this equation after this. Now minus now we get this equation minus dxa over dr, r is equal to r1. We will put r is equal to r1. Then this only the thing which change will be r square here will be converted into r1 square. And after this we get the equation c dab ln 1 minus xa2 1 minus xa1 or 1 minus 1 over r square and 1 over 1 over this all will be we can calculate this all equation from this one. Now we know that the WA is the molar flow of A at the surface of the spherical droplet of radius R1. When we calculate about this, we have to multiply it with the area which we are talking about, which we are considering. So we will multiply it with the 4 pi r square. This whole equation will be multiplied with the 4 pi r1 square. So the equation which we'll get will be this equation. This is from my side. Thank you. सईद खान। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है?
यस यस। म्यूजिक हटा करें। यार ये स्लाइड आगे करते रहना, मैं लैपटॉप पे फिर मोबाइल पे हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आगे सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सर कंपोनेंट, ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है, उसके अराउंड एक गैस गैस है। तो पिछली स्लाइड सर। एक गैस का एक जो है ड्रॉपलेट है, उसके अराउंड एक गैस है। जो ड्रॉपलेट है वो स्फीयर है, उसमें हमने उसकी जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल है वो निकाली है। तो जो रॉफे ने किया है वो आइसोथर्मल के लिए है। जो मेरी जो सवाल में पूछा गया बी पार्ट, उसमें है कि आपने यही रिजल्ट एक्सटेंड करने हैं नॉन आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए। तो अगर हम टेम्परेचर वेरी करते हैं किसी भी सिस्टम में, यानी हमारा सिस्टम है इसमें अगर हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो इसमें दो चीज़ें वेरी हो रही हैं। एक चीज़ है डिफ्यूजिविटी, और ज़ाहिर डिफ्यूजिविटी के चेंज होने से कंसंट्रेशन चेंज होगी। किसी भी अगर कोई गैस की डिफ्यूजिविटी चेंज होती है तो टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होता है। तो ये दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिफ्यूजिविटी एक कंसंट्रेशन, ये बात याद रखना। तो बी पार्ट में दो रिलेशन दिए हुए हैं, एक टेम्परेचर का साइज ऑफ द, जो पहला रिलेशन है साइज ऑफ द इसके साथ ड्रॉपलेट के साथ, और दूसरा है डिफ्यूजिविटी का टेम्परेचर के साथ। ये दो रिलेशन पार्ट बी में क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ तक कि केस वन जो है हमारे पास सेम है बिल्कुल। हम वैसे ही बैलेंस लगाएंगे, एक शेल कंसीडर करेंगे। उसमें हमारे पास जो NBR है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि गैस जो है वो स्टेगनेंट है, उसकी जो है वो जीरो है। और इसी तरह में फिर इसका एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर 2 में जो NAR है उसमें हमने उसकी वैल्यू पुट की है, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। यहाँ तक सेम है आइसोथर्मल और नॉन आइसोथर्मल के लिए। इसके बाद हम जो है यहाँ पर, चूंकि C जो कंसंट्रेशन है इक्वेशन नंबर 3 में, C और डिफ्यूजिविटी ये दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसमें हम इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे जो चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब जो दो रिलेशन दिए हुए थे डिफ्यूजिविटी और टेम्परेचर का, और टेम्परेचर और रेडियस के साथ, तो हमने डिफ्यूजिविटी का जो है वो साइज ऑफ द ड्रॉपलेट के साथ रिलेशन निकाला है, इन दोनों रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए जो बुक में दिए हुए हैं। टेम्परेचर का जो है रेडियस के साथ, उसमें हमने डिफ्यूजिविटी का रिलेशन निकाल लिया है रेडियस के साथ, ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए। और आप जानते हैं कंसंट्रेशन जो है वो पी वी इज इक्वल टू NRT से हमने कंसंट्रेशन C जो है वो PU और RT, यहाँ पर हमने T की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से पुट की है, R जो कि बराबर आ गई है C इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई RT1 R डिवाइडेड बाई R1 की पावर N। ये C है, और डिफ्यूजिविटी की वैल्यू और C की वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। ठीक है सर, आगे। ये जो रेड मार्कर के साथ लिखी हुई है ये वही इक्वेशन है जो आपको 3 पहले हमने दिखाई थी। ये अब हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन और डिफ्यूजिविटी की वैल्यू दोनों पुट कर दी है। बाकी एज इट इज है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है, अगली इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया है। जब इंटीग्रेशन की है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया है C1, इसमें कोई चीज भी वेरिएबल नहीं है सिवाय R के। तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आया है। अब हमने सेपरेट कर दिए हैं जो R है वो वाली वैल्यूज, और जो कांस्टेंट है वो वाली वैल्यूज। जो हमारे पास ये कांस्टेंट है निचली वाली इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड पर है, इसको हम एक कांस्टेंट का नाम देंगे लैम्डा। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं जो
पिछली वाली इक्वेशन थी उसमें हमने जो कांस्टेंट सारी टर्म्स आ रही थी उसको एक जगह करके उसका नाम हमने लैम्डा रख दिया है, जो कि पी डी ए बी और आर टी वन वन और आर वन की पावर एन बाई टू है। यहाँ पर हमने लैम्डा एज इट इज पुट कर दिया है और इसी इक्वेशन को हमने दोबारा इंटीग्रेट कर दिया है, और इसके साथ हमारे पास दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू आया है, और इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने इस इक्वेशन का नाम रख दिया है इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर हम वही बाउंड्री कंडीशन हमारे पास वही सेम है, तो बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 लगाएंगे एट आर इज इक्वल टू आर वन, यानी जो ड्रॉपलेट का सरफेस है वहां पर जो कंसंट्रेशन है वो एक्स ए वन है जो कि अननाउन है। यहाँ पर हमने इसी इक्वेशन में जो एक्स ए है वो उसको रिप्लेस कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन इक्वेशन 6 है उसमें जो एक्स ए है उसमें रिप्लेस कर दिया एक्स ए वन से, आर कर दिया आर वन से, बाकी सारा कुछ वही है। नेक्स्ट सर। सिमिलरली बाउंड्री कंडीशन नंबर दूसरी लगाई है एट आर इज इक्वल टू आर टू, वहां पर एक्स ए जो एक्स ए वो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा और आर इज इक्वल टू आर टू हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है। जो पहली इक्वेशन थी जो जहाँ सी टू था, और ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 लगाई है, और हमारे पास जो नीचे वाली इक्वेशन आई है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द अबव टू इक्वेशन वी गेट, ये इक्वेशन हमारे पास आई है। इसमें से हम जो इक्वेशन है सी टू माइनस सी, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको इसमें से माइनस करेंगे, सी टू से कट जाएगा और इससे हमारे पास वैल्यू ऑफ सी वन आ जाएगी, जो कि आप इक्वेशन नंबर 7A है। ये हमारे पास सी वन, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन की वैल्यू आई है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इक्वेशन नंबर 6 में जो ऊपर है उसमें हम C1 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं, और इसको रीअरेंज किया है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 7A एंड 7B इन इक्वेशन नंबर 6, यानी जो वैल्यू ऑफ C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 है और ऊपर वाले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, इन दोनों की वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में हमने पुट कर दी, जो कि इक्वेशन नंबर 6 थी। ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये लास्ट इक्वेशन है जो हमारे पास लॉग मीन की टेम्परेचर लॉगरिथम वाली टर्म्स है उस पर हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन ये आ गई। ये हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोफाइल्स हैं इसके जो गैस फिल्म है जो कि उसने स्फीयर को सराउंड किया हुआ है, उसमें जो गैस जो मतलब ड्राइंग रेट है, जो जिससे मतलब वो जो हमारे पास ड्रॉपलेट है उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो गैस में जा रहे हैं, तो ये वो इस रेट से जाएंगे अगर अंडर द नॉन आइसोथर्मल कंडीशन। दैट्स इट। That's great. Thank you very much. Very good presentation of Saeed and Afay. Thank you very much बेटा, बहुत अच्छी effort की आप लोगों ने. I appreciate. Without losing the time, who are the next? Abrar and Shehzad. यस सर। बेटा आपकी कौन सी है एग्जाम्पल? सर 18.2.1। चलें बेटा, आप आई एम मेकिंग यू द प्रेजेंटर, आप काइंडली जो है ना वो उसको शुरू करें। ओके सर। फिर तैमूर साहब भी इंतजार कर रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो यू हैव 15 मिनट्स बेटा। सर स्टार्ट करें? जी बेटा स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Today I am Abrar Ahmed and with me Mohammad Shehzad are here to explain the topic of diffusion through moving interface. जैसा कि हम पहले एक केस पढ़ चुके हैं जो हमें सर ने पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन थ्रू स्टैग्नेंट गैस फिल्म। वो हमारे पास केस क्या था कि हमने कहा था कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें नीचे लिक्विड फिल्ड है, ऊपर हमारे पास एक गैस की फिल्म है, और हमने ये कहा था कि हमारे पास जो लिक्विड नीचे है ना वो उसका जो लेवल है वो मेनटेन है, क्योंकि नीचे जो लिक्विड है वो नीचे से कॉन्स्टेंटली फिलअप हो रहा है, मतलब जितना ऊपर वो डिफ्यूज़ हो रहा है नीचे से उतना फिलअप हो जाता है। तो हमारे पास जो इंटरफेस था गैस का और लिक्विड का वो कांस्टेंट था, यानी कि वो किसी एक हाइट के ऊपर था, वो वेरी नहीं कर रहा था। अब हमारे पास क्या है कि जो अब हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, बेसिकली ये हमारे पास डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये हमें शो कर रहा है कि इनिशियली जब टाइम 0 था तो जो लिक्विड की जो हाइट थी वो Z1 थी, मतलब इतना तक लिक्विड जो फिलअप था।
अब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड किया है हमारा जो है मतलब वो सिस्टम स्टार्ट हुआ है और हमारी डिफ्यूजन स्टार्ट हुई है, तो क्या हुआ है कि जो लिक्विड है वो ऊपर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया या डिफ्यूज हो रहा है लिक्विड से गैस के अंदर, जो हमारा कंपोनेंट ए है। तो हमारे पास उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है ना लिक्विड की जो हाइट है या उसकी जो डेप्थ है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने क्या है कि जो हमारे पास इनिशियली हमारे पास वो उसकी जो हाइट थी वो Z1 थी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। एट एनी टाइम वो किसके बराबर होगी Z1 इंटू टी, यानी कि हमारे पास जो लेवल ऑफ हाई लिक्विड है या हाइट ऑफ लिक्विड है फंक्शन किसका है टाइम का। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा हमारे पास जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो डिक्रीज करेगी। अब ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि जब हमारे पास केस था डिफ्यूजन थ्रू स्टैग्नेंट गैस फिल्म का या डिफ्यूजन थ्रू कांस्टेंट इंटरफेस, तो हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन उस केस में हमारे पास ऑफ कंपोनेंट ए क्या था, सी डी ए बी Z2 माइनस Z1 XPLN XA1 माइनस XA2। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो Z2 है वो भी कांस्टेंट है, Z1 भी कांस्टेंट था, मींस इसके हमारे पास जो हमारे पास इंटरफेस था ये कांस्टेंट था। लेकिन अब हमारे पास जो केस है उसमें हमारे पास जो इंटरफेस है वो मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ। तो हम कह सकते हैं अब हमने ये एज्यूम करना है कि हमारे पास द मोलर रेट ऑफ वेपोरेशन ऑफ ए फ्रॉम द लिक्विड फेज इज इक्वल टू द रेट एट विच मोल्स ऑफ ए इंटर द गैस फेज। मीन्स टू से कि जिस रेट के साथ ए के जो कंपोनेंट है उसके मोल्स वो लिक्विड फेज में एंटर हो रहे हैं उसी रेट के साथ आगे इवेपोरेट उनकी इवेपोरेशन हो रही है। तो उसको हम इस रिलेशन के साथ देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेट एट विच moles of A enter the gas phase and this is the rate of evaporation of A from the liquid phase। अब इसमें हम देख सकते हैं कि Z2 हम अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो Z2 हमारे पास क्या टोटल हाइट है या टोटल लेंथ है हमारे सिलेंडर की, तो ये तो Z2 ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब हमारे पास दूसरा वेरिएबल इसमें कौन सा है, Z1। इसमें जो Z1 है इसमें सबस्क्रिप्ट में T लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये कि हमारे पास जो Z1 है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि Z1 टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होगा। तो अब ये हमारे पास रेट ऑफ वेपोरेशन फॉर डिफ्यूजन थ्रू मूविंग इंटरफेस के लिए ये इक्वेशन बन गई है। अब फर्दर इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, तो मतलब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें फर्दर हम अपनी यानी कि मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हमने इसको बाई हैंड सॉल्व किया है फर्दर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब मैं आपको वन बाय वन यानी कि वो स्टेप्स बताऊंगा कि हमने इसको किस तरह सॉल्व किया है। अब हमारे पास ये वाली क्वेश्चन थी, ठीक है। इस पर अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको रीअरेंज किया है कि हमारे पास जो डेंसिटी है ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए, उसको इधर जाके डिवाइड कर दिया नीचे, और जो ये है Z2 माइनस Z1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसको इस साइड पे लेके आ गए हैं, और ये जो dt है ये इस साइड पे चला गया और ये dZ1 इसके साथ आ गया। अब हम इसमें क्या, अब हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम अपनी इस डायग्राम को देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल H है वो किसके बराबर है, Z2 माइनस Z1 नॉट। Z1 नॉट मीन्स हाइट ऑफ द लिक्विड एट टाइम इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, कैपिटल H हमारे पास क्या हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट है। अब दूसरा हमारे पास है स्मॉल एच। स्मॉल एच हमारे पास क्या है कि जेड जो हमारे पास लिक्विड की हाइट थी एट टाइम टी इज इक्वल 0 के ऊपर, और जो जेड हमारे पास लिक्विड की हाइट होगी एट एनी टाइम, मीन्स कि ये हमारे पास जो, क्योंकि हमारे पास जो Z1 है ये भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, हमारे पास जो स्मॉल एच है क्योंकि वो Z1 टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास जो स्मॉल एच है ये भी वेरिएबल होगा। तो हम कह सकते हैं हाँ, तो अब हम जब हम अपनी डायग्राम देखी तो हमने उसमें चेक किया कि हमारे पास जो कैपिटल एच है वो किसके बराबर है, Z2 माइनस Z1 नॉट, और स्मॉल एच इज इक्वल टू Z नॉट माइनस Z1 टी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो Z1 नॉट प्लस Z1 नॉट, ये हमारे पास ये एक माइनस में एक पॉजिटिव में है, तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो हमारे पास फर्दर ये रिलेशन आ जाएगा कि Z2 माइनस Z1 टी इज इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। अब हम अपनी इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो स्टेप 1 के नीचे लिखी इसमें इसको रिप्लेस कर सकते हैं Z2 माइनस Z1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच के साथ। अब फर्दर हमें पता है कि जब हम मतलब अंदर वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। तो अब हम फर्दर आगे ये रिलेशन देखेंगे कि जो हमने नीचे पहले भी देखा था कि स्मॉल एच इज इक्वल टू Z1 नॉट माइनस Z1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर अब हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें तो ये डी एच इज इक्वल टू, अब Z1 नॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, और माइनस डी Z1 टी। अब हमारे पास जहाँ पे dZ1 था वहाँ पे हम d माइनस डी एच पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास अब एक तो नेगेटिव पहले था, एक हमारे पास माइनस डी एच के साथ नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और फर्दर हम क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर
और कांस्टेंट इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास जो है डिफ्यूजिविटी वो भी कांस्टेंट होगी, जो दूसरी हमारे पास डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास ये जो सारी टर्म है सी डी ए बी डिवाइडेड बाय रो ए एम ए इंटू एक्स ए वन माइनस एक्स ए नॉट ओवर एक्स बी एल एन, इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास 1/2 कैपिटल सी के बराबर है। तो हम अपनी जब कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच और इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फर्दर हमने जिस चीज़ को 1/2 कैपिटल सी के इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये एक रिलेशन आएगा कि कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच टी इंटू डी एच इज इक्वल टू 1/2 सी इंटू डी टी। अब फर्दर इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे और इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं मोहम्मद शहजाद को कहता हूँ कि वो फर्दर एक्सप्लेन करें। Assalamu alaikum. Ibrar, are you listening me? यस No, let's move further. जी बेटा Now we take integration. In left side we take limits from 0 to h, and on right side we take limits 0 to t. Then we get, after integration, we get h, capital H into h of small h of t plus h square t divided by 2, which is equal to 1/2 ct. Ibrar, please next slide. Now we just multiply by 2 by this equation, then we get 2h, 2 capital H into small h of t plus h square t, which is equal to ct. Then we just take ct into left hand side, then we get 2 capital H into small h of t plus h square of t minus ct, which is equal to 0. Then we use quadratic formula. By this we first take limits and values for a, b and c, which is a which is equal to 1, b which is equal to 2h, and c is equal to minus ct. By using quadratic formula, we know that h of t which is equal to minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2h. Now we put values of a, b and c, then we get minus 2h plus under root 4h square plus 4ct divided by whole 2. Then we take 4h square in the under root common, then we get minus 2h plus under root 4h square into 1 plus ct over h square whole divided by 2. Then 4h square, we take out 4h square from the under root, then it becomes 2h. So 2 minus 2h plus 2 minus 2h plus 2h under root 1 plus ct divided by h square divided by 2. So we take 2h common, then we get minus 1 plus under root 1 plus ct over h square divided by 2. 2 we cancel 2 by 2, then we get h of t which is equal to capital H into under root 1 plus ct over h square minus 1. By this equation, one can use this experiment to get the diffusivity from measurements of the liquid level as a function of time. Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच अबरार एंड शहजाद, आप दोनों ने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की थी, सारी कैलकुलेशन की हुई, वेरी गुड यार. एनीबॉडी हैड द क्वेश्चन, प्लीज ही और शी कैन प्रोसीड फॉर एनी क्वेश्चन. किसी का कोई क्वेश्चन हो इस प्रेजेंटेशन से? एनीवन कैन रेज हैंड. ओके, लेट अस मूव टू प्रेजेंटेशन नंबर 3. तैमूर साहब, आप इधर हैं बेटा? जी सर. जी सर. तैमूर, आपका नाम तैमूर असद है? जी जी सर. चलिए बेटा, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, और आपके साथ आपके जो हैं पार्टिसिपेट कौन है? सर अकील. उसने किया है काम आपके साथ? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अकील साहब, आपको टाइम मिला था सर काम करने का कि नहीं? प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई? सर बहुत अच्छी एग्जांपल किया. ओके ओके, वेरी गुड. चलें जनाब, यू कैन स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट. एक मिनट सर, शेयर करूंगा.
शेयर हो रही है सर, एग्जांपल शेयर हो रही है। ये अभी आपकी स्क्रीन से और शेयर आ रही है आपके कंप्यूटर की, आई थिंक स्लाइड्स नहीं आ रही। सर अभी शेयर हुई है। नहीं बेटा, अभी भी आपकी ना सिर्फ विंडो आ रही है, अभी स्लाइड्स नहीं आ रही। सर स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, शेयर नहीं हो रही। एक आप वो जब शेयर करते हैं तो शेयर करने के बाद वो आपको जो जो विंडोज आपकी ओपन है ना वो सबके ऑप्शन देता है, तो उनमें से जो पीपीटी आप ये आप आ गई है। आई है सर। जी बेटा, फिगर आपकी जो है ना इमेज आपका शो हो रहा है। शो हो गई है जी सर। बेटा स्टार्ट। जी स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। ये एग्जांपल 18.2.2 है, हमने लास्ट टाइम 18 चैप्टर शुरू किया था, तो उसके अंदर उसके स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ पहले कि द डिफ्यूजिविटी ऑफ द गैस पेयर O2 एंड CCl4 बाइनरी गैस मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है सॉरी, ऑक्सीजन और CCl4 का, is being determined by observing the steady state evaporation of carbon tetrachloride। इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो सा ना वो इवेपोरेट हो रहा है, यानी ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। इनटू अ ट्यूब कंटेनिंग ऑक्सीजन, एक ट्यूब के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन जो सी वो स्टैग्नेंट है, जैसा कि हमने केस सर ने करवाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केस ये शो हो रही है सर? नहीं बेटा, अब शो हो रही है सर? नहीं अभी भी नहीं हुई, हाँ। नेक्स्ट करो। हो रही है। आपको जो है ना वो बार बार स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जहमत नहीं की कि आप इनकी स्लाइड्स बना लेते। आपने एज अ पिक्चर ही जो है ना वो फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो सर स्टॉप शेयरिंग करके उसको दोबारा ओपन करके उसको शेयर करो। ठीक है सर। ये एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास बाइनरी मिक्सर है ऑक्सीजन का और CCl4 का ट्यूब के अंदर। उसके अंदर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना वो हमारे पास इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो सी है वो स्टैग्नेंट फॉर्म में है ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर वो डिफ्यूज हो रही है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद उसने द डिस्टेंस बिटवीन द CCl4 लिक्विड लेवल एंड द टॉप ऑफ द ट्यूब यानी Z2, जहां तक CCl4 का नीचे से बेस से लेके CCl4 जहां तक उसके अंदर भरा हुआ है, वो जोन सा है वो हमारे पास हाइट वो Z1 होती है, और जो बिल्कुल टॉप ऑफ द ट्यूब है वो Z2 होती है। तो उन्होंने Z2 माइनस Z1 यानी जिस हाइट के अंदर अंदर ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, मौजूद है ना, प्रेजेंट है, वो हाइट उसने हमें दे दी हुई है, यानी Z2 माइनस Z1 वो हमारे पास 17.1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अगला है कि द टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम इज 755 mm ऑफ Hg, यानी जो टोटल प्रेशर है ना ऑक्सीजन का और CCl4 का वो 755 mm ऑफ Hg है ट्यूब के अंदर। एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दे दिया होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रेशर है उनका। द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट दिस टेम्परेचर इज 33 mm ऑफ Hg। अब उसने सेपरेट जो सा वेपर प्रेशर है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो हमें उसने दे दिया हुआ है कि ये हमारे पास 33 mm ऑफ Hg है। और अगर हमने इसी तरह वेपर प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना हो तो हमारे पास टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है, तो अगर हम टोटल प्रेशर के अंदर से CCl4 का वेपर प्रेशर जो है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो वेपर प्रेशर आ जाएगा। आगे उसने कहा हुआ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डिफ्यूजन ट्यूब इज 0.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने जो सा डिफ्यूजन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सा ट्यूब का वो भी दे दिया हुआ है डाटा के अंदर, और आगे उन्होंने 0.0208 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी ये वॉल्यूम दिया हुआ है, यूनिट से पता चल रहा है CCl4 का, यानी लिक्विड फॉर्म में कितनी CCl4 जो सी वो ट्यूब के अंदर मौजूद है उसका जो है वो वॉल्यूम भी दिया हुआ है। अब ये इवेपोरेट हो रही है
इतना वॉल्यूम जो सा CCl4 का वो इवेपोरेट हो रहा है इन अ 10 आवर पीरियड आफ्टर स्टेडी स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन के मुताबिक 10 घंटों के अंदर अंदर इतना जो सा वो वॉल्यूम है उसका वो इवेपोरेट हो रहा है। अब उसने कहा कि हमने फाइंड क्या करना है, उसने कहा कि व्हाट इज डिफ्यूजिविटी ऑफ द गैस पेयर O2 एंड CCl4। जैसा कि सर ने बताया था, जब भी डिफ्यूजिविटी हम निकालते हैं तो वो हमेशा दो चीज़ों की होती है, एक की दूसरे के अंदर, किसी एक चीज़ की डिफ्यूजिविटी नहीं हो सकती। तो अब हमने यहाँ पे डिफ्यूजिविटी निकालनी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो सा वो इवेपोरेट हो रहा है। इतनी मेरी स्टेटमेंट की समझ लग गई, आवाज़ आ रही? जी जी बेटा ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ये थी इसकी स्टेटमेंट। और आगे जोन सा अब हम शुरू करते हैं कि अब हमने डिफ्यूजिविटी जोन सी है वो किस तरह उसकी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो उसकी इक्वेशन देखेंगे, इसके अंदर कौन सी इक्वेशन लगनी है जिससे उसकी डिफ्यूजिविटी जोन सी है वो कैलकुलेट हो जाए। उसके लिए मैं आपको यहाँ से वो मैं इक्वेशन आपको बताता हूँ, ये शो हुई है। That equation must 18.1.14. ये इक्वेशन है 18.2.14 जो कि डिफ्यूजिविटी की दी हुई है। ये आप 18 चैप्टर के अंदर ये इक्वेशन जो कि चेक भी कर सकते हैं। यार स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, स्क्रीन शो करो। बेटा आपने स्लाइड्स क्यों नहीं बनाई? सर असल में इसका आइडिया नहीं था, मेरा ख्याल बुक के अंदर से ले लेते तो उधर से, इसलिए मैंने बुक से सर वो फोल्डर बना लिया। मुझे इसका ना आइडिया नहीं था चलाने का। मैं अब शो हुई। उस फिगर को सिर्फ ओपन कर लो, जो शो करनी है, बाकी फिगर्स जो हैं वो क्लोज कर दो। जो शो करनी है ओपन करो, बाकी क्लोज कर दो, फिर वो शो करो उसको, फिर स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करो। ठीक है सर। अब शो हुई है सर। तो हो गई। Then question 18.14 we get. ये क्वेश्चन है सर जहाँ से हमने डिफ्यूजिविटी फाइंड करनी है बोथ बाइनरी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले फैक्ट्स है, हमें सब कुछ गिवन डाटा में चले बेटा आप शो ना करें, मैंने स्क्रीन शेयर किया किताब बुक की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इधर से भी सारी इशू आ रहा था, वो लैपटॉप से ही मसला आ रहा था। थैंक यू जी बेटा क्लास आपको ये बुक शो हो रही है बेटा? यस सर हो रही है। जी सर हो रही है। आप इधर से एक्सप्लेन कर दो बेटा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना जो इक्वेशन सर ने अभी आपके सामने शो किया, आपके सामने शो हो रही है 18.2.14 इक्वेशन जो सी है वो लगनी है, क्योंकि हमने डिफ्यूजिविटी जो सी है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है DAB। अच्छा, इससे DAB क्या है, यहाँ से हम लेट करते हैं, वो ऊपर लिखा हुआ लेकिन वो पार्ट इसके बाद में होना है। ए बी जोन सा है वो ए को डिनोट हम कर लेते हैं कि ए CCl4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जोन सा वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब DAB का मतलब ये है कि हम CCl4 की डिफ्यूजिविटी जोन सी है वो बी के अंदर यानी ऑक्सीजन के अंदर जोन सी है वो हमने कैलकुलेट करनी है और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जोन सी है उसकी हमारी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमें मोलर फ्लक्स चाहिए ए का मोलर फ्लक्स मतलब CCl4 का मोलर फ्लक्स चाहिए। दूसरी हमें हाइट चाहिए Z2 - Z1 जो कि उसने हमें दे दी हुई है, यानी Z2 - Z1 का मतलब है कि CCl4 से लेके ऊपर तक, यानी सिर्फ और सिर्फ वो हाइट या वो पार्ट जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, यानी स्टैग्नेंट गैस ऑक्सीजन मौजूद है वो हाइट। नीचे उसने हमें C दिया हुआ है जो कि कंसंट्रेशन है। फिर ln ऑफ XB2/XB1 यानी ये फ्रैक्शन है ऑक्सीजन की ही Z2 लेवल पे और Z1 लेवल पे।
ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने हमें दी हुई हैं। अब मैं अकील को कहूँगा कि वो ना सबसे पहले ये पार्ट जो सा वो बता दें कि इन्हें मोलर फ्लक्स जो सा वो CCl4 का वो किस तरह कैलकुलेट किया है। जी अकील। मोलर फ्लैक्स ऑफ यानी कि हमने मोलर फ्लैक्स ऑफ CCl4 का हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड करने के लिए हमें एरिया भी चाहिए और टाइम का भी पता होना चाहिए। इस वजह से हमें यानी कि मोल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हमें मोलर फ्लक्स का यूनिट पता है, इस लिहाज से हमें गिवन डाटा से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम का पता है 0.0208 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हमने मैथ में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिटरेचर से डेंसिटी ली CCl4 की एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन यूनिट कैंसल विद ईच अदर गिव मैथ। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली जो नोमिनेटर में टर्म हमारे पास मैथ आ जाएगी। नीचे इसके बाद हमने एरिया से डिवाइड किया 0.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड देन हमारे पास टाइम और में था 10 और था, हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट किया 3.6 इंटू 10 की रेज़ पावर 4 सेकंड। ठीक है, और इसके बाद हमने मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बनाना था, इस वजह से हमने डिनोमिनेटर में इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड भी किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर मोलर फ्लक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज 7.26 इंटू 10 की रेज़ पावर -9 ग्राम मोल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। And then that value we will put in the below formula, that is diffusivity formula, that will be explained by Taimur Ahmed. जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के अकील ने बताया कि मोलर फ्लक्स हमने इस तरह कैलकुलेट कर लिया। अब इसी अगर हम डिफ्यूजिविटी की इस इक्वेशन के अंदर देखें तो मोलर फ्लक्स भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया और Z2 माइनस Z1 जोन सा हमें स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने दिया हुआ है जो कि 17.1 सेंटीमीटर है। अब मसला है सी का कि सी को किस तरह हमने वैल्यूएट करना है। तो सी को करने के लिए जोन सा एक काफ़ी मशहूर सा फार्मूला PV इज इक्वल टू NRT। इसके अंदर क्या करेंगे, जोन सा इसके अंदर से हमने सी जोन सा P ओवर RT हो जाएगा, क्योंकि N ओवर V जोन सा ये हमारे सी देगा। तो P ओवर RT को जब हम पुट करेंगे सी की जगह पर तो RT जोन सा वो ऊपर चले जाएगा और P जोन सा वो नीचे रह जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी की है, हमने क्या किया, फ्रैक्शन को जोन सा है ना वो हमने वेपर प्रेशर के अंदर भी कन्वर्ट किया है। और ये भी एक लॉ काफ़ी मशहूर है जो कि राउट्स लॉ सर ने बताया भी था। उस राउट्स लॉ को करते हुए हमने फ्रैक्शन को भी जोन सा है वो प्रेशर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे डाटा में जो है ना वो हमें प्रेशर्स के फॉर्म में हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये सारा काम किया। अब इसके अंदर जोन सा हमने डाटा पुट करना है, जैसा कि मोलर फ्लक्स जोन सा CCl4 का वो ऊपर कैलकुलेट कर लिया है 7.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9 ग्राम मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये पुट कर दिया। उसके बाद Z2 माइनस Z1 ये हमें डाटा में दिया हुआ है वो पुट कर दिया। अब R जोन सा है ना, जब हमें आपको पता है 82.06 जोन सा है वो हम पुट करते हैं जब प्रेशर जोन सा mmHg के अंदर हमें दिया हो और जोन सा वॉल्यूम हो सेंटीमीटर में दिया हो, तो तब हम उसकी जो R की वैल्यू है ना जनरल गैस कांस्टेंट की, वो हम ये वाली यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके साथ आगे जोन सा है वो टेम्परेचर 273 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ऊपर आपने देखिएगा स्टेटमेंट के अंदर टेम्परेचर हमें दिया हुआ, तो उसको हमने केल्विन में लेके गए हैं तो 273 उधर से आया। अब इधर जोन सा है नीचे उसके अंदर क्या किया हुआ है, नेचुरल लॉग लिखा हुआ, तो इसको हमने सिंपल अगर बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए इंटरनेट पे जाकर सर्च भी करिएगा, वैसे भी आपको पता होगा, तो उसके लिए फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो 2.303 जो कि नीचे आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला। तो इससे नेचुरल लॉग जोन सा वो सिंपल लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जोन सा प्रेशर PB2 ओवर PB1, जोन सा PB2 प्रेशर मतलब कि B तो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 लेवल के ऊपर जाके ऑक्सीजन का जोन सा हमारे पास प्रेशर है, और नीचे जो PB1 है। अब PB1 जोन सा वो किस तरह कैलकुलेट किया, ऊपर तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर दिया हुआ था CCl4 का, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपको बताया था कि CCl4 का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है उसके अंदर से हम CCl4 का जो वेपर प्रेशर है जो कि 33 था वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो सा वो ऑक्सीजन का वेपर प्रेशर 722 आ गया। ठीक है, और इसी तरह जो बायर प्रेशर है वो जो सा वो 755 वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये सारा डाटा पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो डिफ्यूजिविटी का, वो हमारे पास 0.0636 जो सा वो डिफ्यूजिविटी की इतना जो सा ना पर सेकंड के हिसाब से इतनी जो सी CCl4 है ना वो डिफ्यूज हो रही है ऑक्सीजन के अंदर।
ठीक है, ये हमने डिफ्यूजिविटी कैलकुलेट कर दी है। सिंपल ये चीज़ें थी सारी जो बताई हैं, लेकिन नीचे उसने ना ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये भी ज़रा इम्पोर्टेंट लाइनें, ये 2 लाइनें लिखी हुई। जी जी अकील, ये जिसमें हमने गैस डिफ्यूजिविटी कैलकुलेट की है, इसमें कुछ सेवरल डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट ये होता है कि जो हमने कूलिंग ऑफ द लिक्विड, जो वेपरेशन होती है, वेपरेशन कॉज कूलिंग, इससे टेम्परेचर में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। और इसके बाद कुछ कंसंट्रेशन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की भी अपीयर हो जाती है ड्यूरिंग टेस्ट ट्यूब में। इस वजह से भी हमें कुछ डिफिकल्टी आती है डिफ्यूजिविटी कैलकुलेट करने के दौरान। अच्छा, इसके बाद एक कैपिलरी एक्शन भी होना शुरू हो जाता है कुछ ट्यूब के अंदर। वो कैपिलरी एक्शन क्या है कि क्लम्बिंग ऑफ द लिक्विड अप ऑफ द वॉल ऑफ द ट्यूब के ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें डिफेक्ट्स, ये मेन डिफेक्ट्स है गैस फेज डिफ्यूजिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। और कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस, मतलब कि जो सरफेस एरिया है, कर्वेचर है जो ट्यूब का, उसका भी एक मेन रोल है टू कैलकुलेट द गैस फेज डिफ्यूजिविटी। दैट इफेक्ट्स प्ले करते हैं, जो हमें मतलब कि हमें ये वाले डिफेक्ट्स है जो हमें डिफ्यूजिविटी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। जी, तो ये डिफेक्ट से ये बता रहे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए मेथड जो सा ना वो इतना ज़्यादा जो सा वो वैलिड नहीं है इन डिफेक्ट, क्योंकि डिफेक्ट्स आ जाते हैं कैलकुलेट करते हुए। तो ये थी प्रॉब्लम एग्जांपल 18.2.2। Okay, thank you very much, beta. That's great. Thank you very much. So, any Okay. question? उम्मीद है कि आप लोग ने इसको समझ लिया होगा। So, kindly बेटा ये जो असाइनमेंट नंबर 3 की जो अनाउंसमेंट है, ये सब लोग जो है वो काइंडली इसको देख लें। So, you have to submit the assignment number 3, जिसके सेक्शनल 10 हैं मार्क्स। उसमें जो मैथ ट्रांसपोर्ट का जो पार्ट हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 17 में, जो हमने पढ़ा, उसको बेटा अपने नोट्स बनाने हैं बाय हैंड, अपने हाथ से जो है ना वो कलरफुल मार्कर और बॉल पॉइंट यूज़ करते हुए। और उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 18 में हमने जो केस किया, शुरू में जो चीज़ें स्टडी की, शेल बैलेंस के बारे में, बाउंड्री कंडीशन, वो सारी जो है ना चीज़ें, वो सारी फिगर्स वगैरह, वो उसको आपने नोट्स जो हैं वो उसके बनाने हैं, अच्छे से करके बनाने हैं। और उसके बाद ये जो 3 एग्जांपल्स हमने की हैं आज, दीज 3 एग्जांपल्स आर आल्सो इंक्लूडेड। इनको भी आपने अच्छी तरह करना है। और जस्ट जिस तरह ये अबरार ने कैलकुलेशन करके दिखाई हैं और सईद ने कैलकुलेशंस करके दिखाई हैं, सईद और आफे ने, तो आपने स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप कैलकुलेशन का करना है। कोई कैलकुलेशन का स्टेप जो है वो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 1 में भी, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, यहाँ तक जो है जो हमने किया वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लेक्चर हमारे होंगे इंशाल्लाह ताला जुमेरात और जुमे को, वो लेक्चर भी शामिल हो जाएंगे। तो ये असाइनमेंट नंबर 3 का पार्ट 1 होगा, इसको काइंडली आप कंप्लीट करें। तो उम्मीद है क्योंकि आप लोग जो है जब यूनिवर्सिटी आएंगे तो मैं आप लोगों से ये असाइनमेंट जो है ना बाय हैंड वो रिसीव कर लूँगा, अदरवाइज आप उसको स्कैन करके भी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये बेटा कंप्लीट करना है आपने काम। सो एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस में आप लोग ले चुका हूँ पहले बेटा। एनी क्वेश्चन? सर जुम्मे की तो छुट्टी नहीं होगी हज की? जुम्मे को हज की छुट्टी है? सर वो हज की तो होती है छुट्टी। फ्राइडे को तो छुट्टी, फ्राइडे की तो छुट्टी है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया। चलो उसको देखेंगे यार क्या करना है। हज तो आप घर ही बैठे हुए हैं ना आप। चलो बहरहाल इसको जो है वो जो फिर मैंने पढ़ाना होगा जो वो फिर वो आपको एज असाइनमेंट मिल जाएगा बेटा, ठीक है? वो आप लोग फिर कर लीजिए। सर ये जो असाइनमेंट नंबर 3 है ये कब तक सबमिट करवानी है? ये बेटा इसको मैंने कहा है कि ये पार्ट 1 है, तो आप इसको करें, इसको कंप्लीट करें बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है? नेक्स्ट मंडे तक जो है ना उसको आप कंप्लीट करें। तो ईद में आ जाएगी सर। और ईद आ रही है, ईद की क्या करना है बेटा?
चलो कुर्बानी वगैरह करनी है। आप 256 आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद नुमान। हाँ जी, तो इसको बेटा कंप्लीट कर लेना, ट्राई करना कंप्लीट करने की, मंगल तक कर लेना। ओके सर। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन बेटा कोई है आप? चलो फिर बेटा मैं इस लेक्चर को बेटा क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। सर